everyone. अंजलि जी नमस्ते, दीप्ति दीदी नमस्ते, मेघना जी नमस्ते, नमस्ते। प्राची जी नमस्ते, मानसी जी, हरीश जी नमस्ते, पूजा जी नमस्ते, गौरव जी नाइस टू सी यू, नमस्ते, नमस्ते दर्शन मानसी जी, can you hear me? जी welcome to the session. Please get your cameras on if you can. It's nice to see you, Darshana ji. Stay. Wonderful. How are things with you, Darshana ji? कैसे जी? अनम्यूट करके बोलोगे। हाँ मानसी जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ Wonderful. घर में भी सब ठीक है। हाँ जी, सब ठीक है। Very nice. Very nice. Thank you. So Prachi ji, Harish ji, if you can get your cameras on, and I would know little bit about you because others are all our old and regular participants. चलो. So first thing, आज बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको इम्पोर्टेंट ओकेशन जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है हर जगह पे. एवरीवेयर पीपल आर सेलिब्रेटिंग लाइक अ बिग विक्ट्री, बिग इवेंट like Diwali since morning, different places, so much of wonderful bhajans, so much of, the entire day has been like a big celebration across the world. Hmm? All the WhatsApp groups are full of what's happening in the world. Okay, सारे WhatsApp groups में भरा हुआ है. I don't know about people who watch television and everything, वहाँ पे क्या माहौल है. हमारे यहाँ नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है कि ना कैसे चल रहा है. But then I could see a lot of celebration. I could hear since morning. There are non-stop bhajans I'm listening in near my house. Okay, and I know it's a very important day in the history of the country. Today in our morning session, we discussed little bit about what this energy of Rama is. Ram. So I'll ask a question here. So not for people who were there in morning session today, okay, for others. So who is this wonderful being who has been celebrated across the globe so wonderfully well? Lord Rama. Who is Lord Rama? कौन है ये लॉर्ड राम? सुबह वाले ना बोलेंगे, बाकी सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है. दिव्या जी, अभिजीत जी, दर्शना जी, गौरव जी, आज आप राम की ध्यान में आए हुए हैं. तो हु इज दिस लॉर्ड रामा? क्या जानते हैं हम उनके बारे में? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? He is known as the like Purushottam. He is known as the Purushottam. And I mean, actually it's not the exact word. उससे भी पुरुषोत्तम के भी आगे एक वर्ड है जो यूज किया जाता है उन्हें डिफाइन करने. तो ओके, and मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम करके मैन ऑफ वर्च्यूज, पुरुषोत्तम, मैन ऑफ वर्च्यू. मैन ऑफ वर्च्यूज. Yes. ओके, वंडरफुल. यस यस दिव्या जी. आई फील कि हम लोगों में अच्छाई बुराई दोनों होती है, ऑल ऑफ अस. सो लॉर्ड राम रिप्रेजेंट द गुड, द पॉजिटिविटी इन अस. Okay, all right. Yes, anyone else would like to share who is Lord Rama? Who is Lord Ram? Harish ji, namaste.
Nice for you to join this session. Okay. So anything you would like to share? Because mostly others are known participants. I see you and one more name was there as a new participants, huh? So you come for this particular meditation. Wonderful. So what is your knowing about Lord Rama? Ram, Hmm? Yes, Ram is Yogesh. soul. Ram is soul. Okay. Wonderful. Okay. Yes. So जिसको हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका डिफाइन नहीं उनको कर पा रहे। जिनको हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका आज पूरा देश भर में एक पूरा क्या कहते हैं सेलिब्रेशन चल रहा है कि उनका मंदिर बन गया, पर यहाँ पे हम कितने हैं, 14 लोग हैं। उनको डिफाइन नहीं हम कर पा रहे हैं कि लॉर्ड रामा कौन है। क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे? क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे? नरेंद्र जी बताएंगे, हु इज लॉर्ड रामा? We are influenced by Western world. Okay. So when you are influenced by the Western world, we don't have words to define. Yes, we are not able to define. Narendra ji, you have to unmute. Namaste, Ashish ji, Vidya Every ji. karma, Yes. every karma is influenced by Rama. Every karma is being erased by Rama. Okay, so he is a karma eraser. Okay, wonderful, very nice. So many definitions, हाँ? इतने सारे definitions. Okay, हर कोई एक definition बताएगा लॉर्ड रामा का, और वो भी इनफ नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या होते हैं, इतने सारे नाम, इतने सारे अवतार कैसे क्या हो गए हैं? क्योंकि किसी एक का एक डेफिनेशन नहीं है। हर कोई अपनी चेतना के हिसाब से उस एनर्जी को परसीव कर रहा है, अपनी नोइंग के हिसाब से उस एनर्जी को अपने परसीव कर रहा है। अपने राम, अपने अपने राम, हाँ जी। ओके, सब अपने अपने राम है, और इसीलिए so many versions of, so what do you call that, the creator. So Ram is a creator, okay, energy of the creator, okay, who has been born. उनको विष्णु का अवतार कहते हैं, उनका विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है। ओके, और जो है और उसकी एनर्जी को हमें परसीव करना है, ठीक है। तो क्रिएटर की एनर्जी है उसमें। व्हाट इज राम्स एनर्जी? इट इज द एनर्जी ऑफ अ क्रिएटर। ओके, हु इज अ क्रिएटर? हु इज अ क्रिएटर? जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, यूनिवर्स, जिसने हम सबको बनाया और हम सबको क्रिएट करने का कैपेसिटी दिया। ओके, हम सबको क्रिएट करने का कैपेसिटी दिया, वो है राम। ओके, और राम जो है, राम, लॉर्ड रामा जो है, वो लॉर्ड रामा कैसे बने? कैसे? by karma. बाय कर्मा। ओके, Sacrifice. बाय सैक्रिफाइस। ओके, by living a virtuous life. Okay, by being a role model, in short. Is it really true? Okay, is it really true? Why we are discussing this is because ये कॉन्सेप्ट को हम समझते नहीं हैं, और इस जो हमारी चेतना है उस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन हमें सही लगती है उसको हम मान लेते हैं। ओके, तो राम कौन है? भगवान है। ओके, मेरे बचपन से तो मैंने उनको, राम कौन है? भगवान है, जिनकी मेरे घर में बहुत ज्यादा पूजा होती है, इज व्हाट आई वाज अवेयर ऑफ फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। ओके, तो राम कौन है? भगवान है, ठीक है। कौन है? उनका घर कहाँ है? अयोध्या है। ओके, और जो भी सीरियल सब हमने देखी और उनकी स्टोरीज हमको पता है, राइट। उनके सारे स्टोरीज, उनकी इंफॉर्मेशन हम तक जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी पहुंची हम तक पहुंच गई। बट जानेंगे,
आज थोड़ा सा और डीपर जानेंगे, ओके, कि ये एनर्जी ऑफ राम क्या है। ओके, एनर्जी ऑफ राम इज द एनर्जी ऑफ ट्रुथ, सत्य की एनर्जी है, और इसीलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ओके, फॉर दैट मैटर, जो भी कौन है भगवान, बोलते तो भगवान है। कौन है भगवान? इतने सारे लोगों की बहुत सारे इसी तरीके के जवाब आएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन एनर्जी ऑफ द क्रिएटर इज द एनर्जी ऑफ ट्रुथ, और ट्रुथ जो है, सत्य जो है, वो हम बोल नहीं सकते। कि कल की शाम की क्लास में हमने इसको कवर किया था। सत्य को हम बोल नहीं सकते हैं, समझेंगे। ओके, सत्य को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस वर्ल्ड में जो भी हमने बोल दिया वो सब बन गया अविद्या, असत्य। क्योंकि एग्जाम्पल, किसी ने बोला राम जो है भगवान है, किसी ने बोला वो सोल का एनर्जी है, किसी ने बोला इज अ वर्चुअस मैन, तो क्या सत्य है इसमें से? ओके, मैं एक उदाहरण हर बार देती हूँ। कोई मुझे बोलता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कोई बोलता है आपकी आवाज एकदम खराब है, कोई बोलता है बहुत अच्छा सिखाते हो, कोई बोलता है आप जो सिखाते हो समझ में नहीं आता है। इसमें से सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रू? व्हाट इज द ट्रुथ? नॉट व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज द ट्रुथ? हम्म कोई बोलेगा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बोलेगा आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, कोई बोलेगा आपके अंदर मुझे भगवान दिखाई देता है, कोई बोलता है आपके अंदर तो मुझे शैतान दिखाई देता है। व्हाट इज द ट्रुथ? व्हाट इज द ट्रुथ? सत्य क्या है? चेतना। सत्य जो है वो हम बोल नहीं सकते। जो भी हम बोल देते हैं वो सब असत्य और अविद्या बन जाता है। व्हाट इज अविद्या? अविद्या मतलब ये पूरी बाहर की दुनिया का ज्ञान इज अविद्या। जो भी बाहर की दुनिया में हमें दिख रहा है, फील हो रहा है, सुनाई दे रहा है, क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, ये सब जो है लॉजिकली जिसको हम कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, वो सब बाहर की दुनिया का ज्ञान, उसको बोलते हैं अविद्या। और विद्या क्या है? विद्या है अंदर की दुनिया का ज्ञान। ठीक है, इसीलिए हम विद्यालय तो गए हैं पर हम तक विद्या नहीं पहुंची, क्योंकि विद्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर जाने से आएगी। अंदर मतलब कैसे अंदर जाएगा कोई? अंदर कैसे जाएगा? अंदर हम जाते हैं थ्रू ऑल दिस spiritual so-called practices. Meditation is the most powerful tool for one to go inside. It's the bridge between your inner world and the outer world. विद्या और अविद्या के बीच का जो ब्रिज है वो है ध्यान। इसीलिए गुरुकुल में जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी तब क्या होता था? सबसे पहले बच्चा जब गुरुकुल जाएगा, उसको फर्स्ट चीज क्या सिखाई जाती थी? ध्यान, मेडिटेशन। एबीसीडी नहीं सिखाया जाता था। खाली कैसे करना है, तो ब्रिज जो है वो कैसे कनेक्ट होना है, विद्या और अविद्या का ब्रिज। ओके, अभी टुगेदर। सो दिस एनर्जी ऑफ रामा इज द एनर्जी ऑफ ट्रुथ, एंड दैट्स द रीजन वी कैन नॉट से इट, वी कैन नॉट, anyone will say anything, you will say there is more to it, which I know. कोई भी कुछ भी बताएगा, आपको लगेगा इससे कुछ तो भी और है जो मुझे पता है, पर उसको पूछेंगे डिफाइन करो तो डेफिनेशन में नहीं आ सकता, लिखो तो उसको लिख नहीं सकते। आप समझ रहे हैं सभी लोग? आर वी टुगेदर? शो मी अ थम्स अप सो दैट आई नो व्हाट यू नो। ओके, सो लाइक दैट। ओके, it is the energy of pure consciousness, it is the energy of oneness, it is the energy of the creator, which is there in us and which is there in outside of us also. Energy of the creator is inside of us and outside of us both. ओके, तो उस राम का एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ट्रुथ। ओके, और हमारे अंदर में वो ट्रुथ का पोर्टल कहाँ है? ट्रुथ कहाँ पर हम परसीव करते हैं या ट्रुथ को हम समझते कहाँ पर है? इन द हार्ट। इसीलिए कहाँ पे हनुमान जी के ने जब उन्होंने अपना दिखाया था राम कहाँ पे है, तो उनके कहाँ थे राम? इन द हार्ट, बिकॉज दैट Heart. इज वेयर, जहाँ पे आप ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सत्य को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस करने का पोर्टल ही है हार्ट।
ठीक है, तो हमारे 3 सेंटर्स हैं। ओके, एक ह्यूमन बीइंग के ना 3 सेंटर्स हैं, सभी लोग सब ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट सेंटर कौन सा है? ये। ओके, ये फर्स्ट सेंटर है। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे होते हैं मोस्टली। यहाँ से क्या करते हैं? हम सोच विचार करते हैं। सोचना, कैलकुलेशन करना, इसने कुछ बोला तो मेरे को उसको क्या बोलना है, वो जवाब देना। ठीक है, ये पास्ट में मेरे साथ में क्या हुआ उसके बारे में सोचना, फ्यूचर में मेरे साथ में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचना। तो पूरे टाइम जो सोचना है वो यहाँ पे चल रहा है। ओके, सेकेंड सेंटर जो है, और ये चलता कैसे है? ये सेंटर कैसे चलता है? ये सिर्फ सोचने से चलता है। यहाँ इसको एनर्जी कैसे मिलती है? सोचने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक्टिव कैसे रहेगा? सोचने से एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये है हार्ट सेंटर। हम्म, ये हार्ट, ये क्या है? हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे सब तार जोड़ने का काम है। न्यूरॉन्स, पता है न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। यहाँ पे सब कनेक्शंस। ओके, देखेंगे आपका सोचना पूरा कनेक्शन में चल रहा है। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो उसने ऐसा कहा तो पहले ऐसा हुआ था। इफ सी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कनेक्शन। ओके, यहाँ पे है पूरा इलेक्ट्रिक मामला। और ये जो है हार्ट जो है वो क्या है? मैग्नेटिक मामला यहाँ पर है। ओके, सो द मैग्नेट इज हियर इन द हार्ट। तो मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेट का काम क्या है? इलेक्ट्रिक का काम है खींचना, कनेक्शन जोड़ना। हाँ, खींचना, खींचना, हाँ, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना, राइट। मैग्नेट का काम क्या है? अट्रैक्ट करना। ठीक है, और ये कैसे चलता है? ये मैग्नेट जो है इसको एनर्जी कैसे मिलती है? इसको तो सोचने से मिलती है। इसको एनर्जी कैसे मिलती है? एनीवन हियर? इलेक्ट्रो से, कैसे मिलती है? इलेक्ट्रो, नहीं, नो। ओके, क्या? मैं जैसे यहाँ पे सोचने से मिलती है, लेमन्स लैंग्वेज। हाँ, इसको एनर्जी कैसे मिलती है? एनीवन हियर? मैं Love. पुरानी, लव, प्यार करने से, सेवा करने से। हाँ जी, बस पुरानी, वही मैं बोला, वही कौन है पुराने स्टूडेंट्स? ये मैं तो प्रेम करने से और सेवा करने से इसको जो है मैग्नेट आपका चार्ज होता है। यहाँ पे उसको एनर्जी मिलती है प्रेम से और सेवा से। ठीक है, तो क्या होता है प्रेम? प्रेम का मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ लव? अनकंडीशनल सर्विस, Sacrifice. यस, sacrifice. सेक्रीफाइस। Anyone, everyone, let's understand the meaning of love is sacrifice. Okay, that is the reason, क्या बोलते हैं, purest form of love in this current reality is the love of a mother towards the child till the time the child is very young. Okay, once the child becomes adult, there is no, it is become not a sacrificial love. Then it becomes a transactional love. Yes, so okay, so ये जो है क्या होता है? ये कैसे चलता है? प्रेम करने से। सैक्रिफाइस मतलब क्या है? सैक्रिफाइस मतलब क्या है? किसी और को हमारे आगे जो है भेजना। मतलब क्या है? हमेशा नंबर 2 बने रहना। हम्म, नंबर 2 बने रहना मतलब किसी और को हमें आगे जाने में मदद करना। ठीक है, और सेवा का क्या मतलब है? सेवा करेंगे तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे। निष्कर्म का, मेवा मिलेगा, है ना? पर सेवा, मेवा मिलने के लिए सेवा करना है क्या? नहीं नो, नहीं 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 नहीं। तो सेवा का मतलब है डूइंग एनी सर्विस विथ नो एक्सपेक्टेशन। डूइंग एनी सर्विस विथ नो एक्सपेक्टेशन। हम सब जगह पे अनकंडीशनल सर्विस, एक्सपेक्टेशन के लिए हम जो है, एक्सपेक्टेशन के लिए हम सेवा कर रहे हैं। मैं ये करूंगी तो मुझे ऐसा होगा, मैं ये सेवा करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, या मैं ये काम करूंगी तो उसका मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। हैविंग सेवा मतलब कोई भी कार्य करना जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। और ये निष्काम। ये लव और सेवा का ग्रेटेस्ट सिंबल कौन है? कौन है इन द करेंट एरा? चलो, आज के हर्ट चक्रा, दिन, हर्ट आज के आज के दिन के हिसाब से Ram. हनुमान। लॉर्ड हनुमान। Hanuman. यस, लॉर्ड हनुमान। ही इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ प्रेम एंड सेवा। Okay, and so Lord Ram and Hanuman. Okay, Ram is known because of Hanuman. Okay, understand? So whenever you have to become someone, they say Ram बनना है
कि हनुमान बनना है, हमेशा हनुमान बनना चूज करो, क्योंकि जब जब आप हनुमान बनेंगे आपका मैग्नेटिक पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हमेशा नंबर 1 बनना है कि नंबर 2 बनना है, हमेशा नंबर 2 बनना चालू करो, क्योंकि नंबर 1 एक ही होता है। ओके, नंबर 2 को बहुत सारे नंबर 1 बनाने का मौका मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये हार्ट जो है वो मैग्नेट है। तो आज जो है हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, इस मैग्नेट को एक्टिवेट करने का मेडिटेशन करने वाले। ओके, तीसरा हमारा सेंटर है, वो है गट सेंटर। ओके, गट सेंटर। ओके, इसको हम जो है क्या कहते हैं, नाभि सेंटर भी कहते हैं। अब ये नाभि सेंटर किससे चलता है? ठीक है, नाभि सेंटर का मेन सोर्स क्या है? हम क्या अग्नि। खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, और कैसे हमारी सेहत, हमारे गट सिस्टम का कैसा ध्यान रखते हैं। वो हमारा जीपीएस है, इस धरती पे कैसे जीना है, कहाँ पे हमारा सोना है, कहाँ पे कौन सा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अवेटिंग है, किससे मिलने से हमको फायदा होने वाला है, किससे मिलने से हमको धोखा मिलने वाला है। ये जीपीएस सिस्टम है ना, वो सिस्टम आपके नाभि में है। तो उसको अगर हमें उसका काम है, उसका क्या, अच्छा सा फुल बॉडी का वर्कआउट। ओके, अच्छा खाना खाना, और जो है तीसरा जो है डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ, बच्चे के जैसे फुल डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ में रहना। ओके, बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे सांस लेते हैं? कभी सोते हुए बच्चे को देखा है? वो सो रहा है तो उसका पेट ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इस तरीके की डीप रिलैक्सिंग सांसों लेना, ये 3 चीजों से आपका ये नाभि सेंटर जो है वो एकदम उसको एनर्जी मिलती है। समझ में आया? ठीक है, ये 3 सेंटर से। तो आज का दिन जो है, आज हम क्या करेंगे, हमें जो है राम को, द लॉर्ड राम्स एनर्जी को हमें अगर एक्टिवेट करना है, तो हम सबको क्या बनना पड़ेगा? हम्म क्या बनना पड़ेगा? हनुमान। हनुमान। ओके, हनुमान। हनुमान, यस। ओके, सो आज जो है हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, वो मेडिटेशन आज हम अपने हार्ट को एक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि हार्ट जब एक्टिवेट होगा तो क्या बनेगा? ये मैग्नेट। फिर मैग्नेट जो है हमको जो है, जो हमारे लिए सही है वो हम तक, जो हमारे लिए ट्रू है, सत्य है, उसको हम तक लेकर आएगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमको क्या है, हमारे अंदर में मैग्नेट एक्टिव नहीं है, तो हम इधर उधर दौड़ भाग चल रही है, हमारी कंफ्यूजन चल रहा है, जो नहीं भी चाहिए वो भी अट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि हमारे अंदर में कंफ्यूजन। तो मैग्नेट जो है, ये हम प्रेम और सेवा से जब हम इस मैग्नेट को एक्टिवेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे लिए सत्य है वो हम तक अट्रैक्ट होके आ जाएगा। टुगेदर एवरीवन? ओके, Yes. वंडरफुल। एवरीवन रेडी? दिस इज गोइंग टू बी अ मेडिटेशन जहाँ पे हमें 2 चीजें करनी है। ठीक है, इनफैक्ट 3 चीजें। फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे केचरी मुद्रा। इस मुद्रा को सभी लोग अच्छे से सुन लेंगे, केचरी मुद्रा। ये टंग जो है ना, जीभ, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, और मुंह बंद कर लें। ठीक है, दैट इज नंबर 1, केचरी मुद्रा कहते हैं इसको। तो टंग को जो है, मतलब हमने अपने मुंह को बंद कर दिया, और फिर मुंह को बंद कर लेंगे। जितना देर कर सके करेंगे, छूट जाएगी कोई बात नहीं, वापस लगा लें। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, सैक्रिफाइस। अब हम थोड़ा थोड़ी देर बोलना अपना बंद कर दें। ठीक है, तो जो है हमने अपने टंग को अपने एनर्जी सेंटर्स को अलाइनमेंट के लिए हमने कनेक्ट करी। ओके, सेकेंड चीज क्या करेंगे, आई विल बी प्लेइंग अ मेडिटेशन जिसमें राम का जप है। तो जब वो राम चलेगा तो हमें भी राम उसको बोलना है। ठीक है, और जो है कैसे बोलना है, डीप रिलैक्सिंग सांसों के साथ, राम राम, तो सांसों के साथ बोलना। ठीक है, टू टेक डीप रिलैक्सिंग breath, and in that breath you'll be, while you are exhaling, you are saying Ram. एक्सक्यूज मैम। Okay, हेलो। yes, yes, मैम जब केसरी मुद्रा लगाएंगे तो आवाज निकलेगी नहीं? हाँ जी। तो जब हम पहले डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ करेंगे ना, तब केचरी मुद्रा, यस, सॉरी जब हम डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, तब हमें केचरी मुद्रा लगानी है।
और जब राम का चैंटिंग होगा तब राम बोलना है। यस, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। देखिए मुझसे मिल सब गया। हाँ, तो केचरी मुद्रा लगाएंगे, 11 डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ करेंगे। उसके बाद जब चैंट होगा तब चैंट बोलना है। अगर कोई चैंट नहीं बोल रहा है तो उसने केचरी मुद्रा वापस लगा लेनी है और अपने सांसों के साथ में रहना है। डन? एवरीवन क्लियर? ओके, थम्स अप सो दैट आई नो कि आप सब वो समझ में आया। जिनका वीडियोस ऑफ है, अगर वो भी मुझे एटलीस्ट थम्स अप दिखा दे तो मुझे समझ में आएगा कि हम आपने सबने सुन लिया है। वंडरफुल, वेरी नाइस, ग्रेट, परफेक्ट। चलिए, यस, अंजना टंडन जी, डू यू हैव एनीथिंग? नो, ओके, शी इज ओके, ऑलराइट, I यस, just wanted to tell, yes, we have understood. पहले 11 अंडरस्टूड। में हमको सिर्फ केशरी मुद्रा लगानी है और डीप ब्रीदिंग करनी है, हाँ जी, डीप ब्रीथिंग कनेक्शन करनी, करना है, फिर उसके यस, बाद में हमें बोलना है। राम का जो है जप हमें चालू करना है। जी जी ओके, हम जो है करीब ये 8 o'clock हो गया है, हम 9 o'clock तक हम आज जप करेंगे। 9 o'clock को हम ये सेशन एंड करेंगे। तो किसी को भी अगर वॉशरूम जाकर आना है तो वो जरा वॉशरूम जाके आ जाए जल्दी से। किसी को भी अगर कुछ, हाँ ये सभी जी, किसी को भी अगर कुछ करना है तो जल्दी से 2 मिनट में करके आ जाए। ओके, तो देखेंगे 1 घंटा हम आज यहाँ बैठेंगे और इसका जप करने वाले। यस, आपने अभी जी। आपने 3 स्टेप्स कहे थे, तो Yeah, the पहला तो first केसरी मुद्रा। first केचरी मुद्रा, सेकेंड इज डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ्स फॉर 11 ब्रेथ्स हम करेंगे। उसके बाद ये राम जो हमें बोलना है वो हमें एक्सिलेशन के टाइम पे बोलना है। डीप रिलैक्सिंग इनहेल एंड एक्सिलेशन के टाइम पे हमें। ओके, और क्या करना है, पूरा फोकस हमें कहाँ करना है, हमारे हार्ट हार्ट। सेंटर पे। हार्ट सेंटर पे ये पूरा जर्नी हम करेंगे फॉर ओपनिंग एंड मैग्नेटाइजिंग अवर हार्ट सेंटर, so that मैम automatically मैं the energy of truth is getting attracted to us. Yes, Narendra ji. एक्चुअली क्या हार्ट सेंटर पे हाथ रख सकते हैं? जरूरत नहीं है, ये इतना बढ़िया सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि उसको जरूरत नहीं है कि हम, अगर किसी को भी इसके बीच में से लगे कि हेवी हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है, ऐसे करना है हाथ को और ऐसे टैप करना। ठीक है, किसी को भी ऐसे लगे कि एनर्जी ज्यादा हो रही है या फिर हेवीनेस लग रही है चेस्ट पे, तो ऐसे ऐसे करके टैप करेंगे सांस लेते हुए, तो वो एनर्जी जो भी है वो रिलीज हो जाएगी। ओके जी। थैंक यू। मेंटली हेलो Yes. हेलो मेंटली आपने क्या क्या बोलने का? बोलने का कुछ नहीं, जो अभी मैं ऑडियो चलाऊंगी ना, तो जो ऑडियो में राम का मंत्र है, जो राम जो बोला गया है, जो हमें जो है बस वो राम को बोलना है। ठीक है। पहले केसरी मुद्रा लगानी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है और उसके बाद में राम जब हम चालू करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल। सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। विथ यू वुड नॉट हैव द राइट टू अनम्यूट until the session gets over. Okay? यस, जहाँ अच्छा जो जो लोग शॉल और ये लेकर आए हैं, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज। ओके, सो अगर आप एक शॉल ओके इस सेशन के लिए लेकर आ सके, सो दैट हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। शॉल या दुपट्टा जो आप अपने मेडिटेशन में अपने ध्यान में लेके बैठना चाहेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो लेकर आ जाइए, क्योंकि कुछ लोग कल आए थे तो उनको मैंने बताया है। तो उस शॉल को अपने अराउंड में, सो दैट हम एनर्जी को मैं इस दुपट्टे में या इस शॉल में या एक आसन आप ले आएंगे तो उसमें हम जो है हम एनर्जाइज करेंगे उसे, सो दैट जब जब आप उसे ओढ़े वो आपको वो एनर्जी मिले जो आज हम करने वाले हैं। इफ यू कैन गेट अ शॉल और दुपट्टा, दैट वुड बी वेरी नाइस। इफ यू कांट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। वंडरफुल। Gently close your eyes, आंखें बंद। Take a deep relaxing breath, लंबी गहरी सांसें। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Deep relaxing inhale and deep relaxing exhale. Deep relaxing inhale
and deep, relaxing exhale. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. केचरी मुद्रा लगा लेंगे. Everyone will put the केचरी मुद्रा on. Spine को एकदम अलाइन कर लेंगे. Chin parallel to the ground. Palms are open. Palms are open and they are in your lap. Inviting and invoking the energies of the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the spiritual teachers, all the holy gurus. Inviting and invoking the energies of Mahavatar Babaji, Mahaguruji Meling, Meher Baba, Matara. Inviting and invoking the energies of Lord Rama to be present here during this session, to heal us, to guide us, to help us create a life of fulfillment, joy, happiness, passion, purpose, prosperity, and abundance. अब हम 11 लंबी गहरी सांसें लेंगे. Inhale from the base of the spine. ऐसे सोचना है कि सांसें जो है वो स्पाइन के नीचे से, बेस ऑफ द स्पाइन से आ रही हैं और ऊपर आपके सर के ऊपर तक जा रही हैं और वहां से वापस बेस ऑफ द स्पाइन में वापस आ रही हैं. Inhale from the base of the spine to the top of the head and exhale from the top of the head to the base of the spine. Inhale and exhale. 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 Inhale and exhale.
Inhale. And exhale. Bring all your awareness, all your intention onto your heart center, requesting your heart to open and receive your own truth, the energy of Lord Rama into your heart center.
Ram
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 Whenever you are ready, take a deep, relaxing breath. Only गहरी सांसें लेंगे. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे. Being in total balance, receiving the energies of Lord Rama. Thank you. Thank you. Thank you. Bow down your head and receive the energies. Thank you. And leave up both your palms. Rub your eyes. See the light inside between your eyebrows. Open your eyes, listen, receiving the energies from your palms to your eyes, from your eyes to your body. Again, close your eyes and massage your face, massage your throat. Nice, gentle massage. Back of your head, top of your head, gentle massage across onto your chest, massage your chest area, massage your abdomen area, massage your back, entire back, gentle massage your legs,
Gently open your eyes, looking at Mother Earth, connecting to Mother Earth, thanking Mother Earth. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Open your arms, look at the abundant universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Give yourself a nice warm hug. Acknowledge your body. Tell your body what an amazing body you are. Thank you, body. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Tell your body you are taking wonderful care of me. Thank you, body. Hmm? And slowly open your eyes with a beautiful big smile. Wonderful. थोड़ा पानी हो तो पानी सिप कर लेंगे. Just little bit drink water. Wonderful. Very nice. Hmm. तो कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं, कुछ लोग दिए लगा रहे हैं, कुछ गाने बजा रहे हैं. आज बहुत सारे प्रोसेशंस हुए हैं. कोई मिठाई बना रहा है, कोई कुछ मंदिर के लिए दान कर रहा है. हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है. ओके. ये जो कर रहे हैं ये पूरा आउटर वर्ल्ड में कर रहे हैं, है ना. झंडे लगा के घूम रहे हैं, सब आउटर वर्ल्ड में हो रहा है. आज आपने जो चैंट किया, तो यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ. ओके. हम किसी इतने बड़े बड़े यज्ञ आज हो रहे हैं, है ना. सो what did you sacrifice today? What did you love Lord Rama with today? Is with your breath. You have sacrificed. Love matlab sacrifice. Each breath of yours was a ahuti, yajna, and then for Lord Rama. Understand what we did today. The chant which we did, every breath of ours was like a yag. Understanding? समझ में आया हमने क्या किया? कितना कितना profound है ये. This is sacrificing your breath is the highest sacrifice any human being can make. Understanding? आप दान करेंगे, प्रोसेशन करेंगे, मिठाई बनाएंगे, फिर खाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, मंदिर में गाना गाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल करेंसी. जो स्पिरिचुअल करेंसी जो है ना, उसको आज आपने यूज किया. Okay, so that was the meaning of this entire chant, and whoever can continue with this wonderful space. Okay, and continue doing the chanting if you want to. Okay, but understand 1 hour. Okay, every breath of ours we have sacrificed. So the heart में जो हमें ओपन होना है, okay, जो हार्ट को मैग्नेटिक बनाना है, वो बहुत इजी है. ओके, वो बहुत इजी है. पर वो बाहर की दुनिया में एंगेज होके नहीं नहीं होने वाला. उसके लिए अंदर की दुनिया में आना पड़ेगा. इसके लिए अंदर की दुनिया में आना पड़ेगा. यस. सो आई एम जस्ट गिविंग यू योर राइट ऑफ unmuting. You can now unmute and share how was the experience for you, and what did you learn about yourself. Whatever you wish to share. कोई भी जो भी शेयर करना चाहता है अनम्यूट करके शेयर कर सकता है. Yes. भारत जी, आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है, आप शेयर करना चाहते हैं? It was a wonderful experience. Right. I just
though there are many crackers outside, I Hmm. just when you said बहुत पटाखे फूट रहे तभी I just came to know कि यार काफी means I was in my own world. Okay. So it Wonderful. was I really enjoyed this. Wonderful. Very nice. किसको किसको लगा कि 1 घंटे से 5 मिनट में खत्म हो गया? How many of you felt ऐसे थे 1 घंटा ऐसे अरे खत्म हो गया 5 मिनट में? कि किसको किसको लगा कि 1 घंटा भी बहुत लंबा चल रहा है, खत्म कब होगा, कब कॉल आएगा, कब बोलेंगे कि चलिए ओपन योर आइज? किसी किसी ऐसा लगा? ठीक है, शेयर करेंगे सो दैट आपको पता रहेगा कि आप हम वैसे कहाँ पे। लगा तो नहीं, but there was a lot of noise from outside, right? So my meditation was kind of disturbed. ओके, ऑलराइट, ओके। सो कुछ लोगों को लगा कि 1 घंटा तो ऐसे ही खत्म हो गया है ना। ओके, सो व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, टाइम जो है वो ऐसे निकल जाता है। व्हेन यू आर इन प्रेजेंट मतलब कि एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स यू आर जस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। व्हेन you are in present there is no time. Okay, so whoever experienced that अभी ये बहुत लंबा चल रहा है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। एक तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों की वीडियोस ऑफ हो। जबकि वीडियो ऑफ हो जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को क्या लगता है, हाँ ये बंद है, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। एक तो ये हो सकता है, और एक तो ये जर्नी नहीं है और आज बहुत बाहर में शोरगुल है। ओके, दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस फॉर यू टू एक्सपीरियंस दैट। ओके, but then when you are with your breath, when you are with your breath, okay, you are in the present moment, and their time is just, it just moves at a different dimension, at a different space altogether. Okay, wonderful. How many of you felt दीदी मेरी little आंखों से बहुत emotional? पानी आ रहा था। Yeah, I was about to ask that question. How दीदी many of you, किसको किसको बहुत इमोशनल दीदी लगा, ऐसे लगा कि ना? हाँ जी, मुझे विद्या जी। मेरी आंखों हाँ, से इतना पानी आ रहा था, आंखों से हम, अपने आप बहुत पानी आ रहा था, यस, किस किसको ऐसे लगा कि बहुत ही। When इमोशंस? I was able to concentrate, बाहर से डिस्टरबेंस मतलब पटाखे इतने जल रहे थे कि इतना जोर से आवाज आई कि एकदम सडनली उठ गई। तो आई वाज फीलिंग लाइक आई एम हनुमान जी एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राम एंड मेडिटेटिंग राम, मतलब राम जप कर रही हूँ मैं। सो नाइस। यस, वैजयंती जी 2 बार रोना आया था। आया ना? और 2 बार बहुत यज्ञ जैसा भी दिखा था। दिखा था। हम्म। यस, तो ये रोना क्यों आया? मैं भी मालूम नहीं क्यों आ रहा था। हार्ट ओपन इमोशनल हुआ, हो गए थे। हार्ट ओपन हुआ, हार्ट हार्ट ओपन हुआ। यस, और हार्ट ओपन हम होने से रोना है। हम yes, अटैच हो गए उससे। नहीं समझेंगे, हमारे अंदर में एक ही सबसे बड़ा दुख है, वो है राम से जो हम दूर हो गए हैं ना, वो दूरी का ही बस दुख है, और कोई दुख हमारे अंदर है ही नहीं। ओके, तो जब हम राम जप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंखों से जो है ये आंसू आ गए कि भाई इतना टाइम लग गया तुझे याद करने में, तुझ तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये मैं जो और तू जो अंदर ही जो है और हम बाहर ढूंढ रहे हाँ जी, है तो अंदर ही और बाहर ढूंढ रहे, सही बात है। ढूंढ रहे थे। तो वो जितने लोगों को इस टाइप के कुछ इमोशंस फील हुए, इट्स बिकॉज ये राम जो है हम हार्ट का है, एंड हार्ट नो द माइंड जो है वो बंद हो गया और हार्ट ओपन हो गया, और ये ध्यान में आ गया कि भाई एक ही दुख है, एक ही गम है कि भाई तुमसे जुदाई हो गई। ठीक है। ऑलराइट, वंडरफुल। सही है। मुझे या मानसी यस जी, मुझे यस पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो अभी भी। वाइब्रेशन, वंडरफुल, वेरी नाइस। वंडरफुल। मैंने उस दिन एक आपने मैंने एक सुना था, मतलब एक आई थिंक कोई स्टोरी में सुना था। ये कोई संत हैं, जब वो रात को सो रहे हैं और उनके रूम से राम 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 की आवाज आती रहती है, और जो है उनके कोई एक गेस्ट जो उस एक रात को उनके यहाँ पे रुकने का उनको मौका मिल गया, ही वॉज वंडरिंग कि राम की आवाज कहाँ से आ रही है, राम की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो जाके उन्होंने चेक किया कि वो तो सो रहे हैं,
ठीक है, पर ये आवाज तो कंटिन्यूशन में आती रह रही है। तो ये जो जपा और अजपा, मतलब हम ऐसा जप हो जाए कि हमारी पूरी बॉडी सिर्फ उसी वाइब्रेशन को जप करती रहेगी। ये जो वाइब्रेशन है ये कब जो है इतने प्रोफाउंड हो जाएंगे कि आपके आजू बाजू में पूरे टाइम ये एनर्जी वाइब्रेट करती रहेगी। इसको बोलते हैं जप। तो हम जप हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि अजप हो जाए। ओके, जप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जपा जो है वो अजपा जापान हो जाए, अजपा हो जाए। ठीक है, wonderful, very nice. Thank you everyone for attending today's session. Thank you. Thank you, Thank you so Mansi. much. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you. everyone. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, Mansi ji. Thank you. Thank you, Mansi. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.